गुड इवनिंग चर्च। आइए हम सब अपने साथ में खड़े हो और हमारे प्रभु के प्रभु और राजाओं की राजा की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसका हमें ये अवसर दिया है, जो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इस परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तेरा प्रेम से प्रभु सच में कोई अलग नहीं कर सकता। आपका प्रेम अद्भुत है जो आपने हमारे से किया परमेश्वर प्रभु, प्रेम कोई नहीं कर सकता था जो आपने हमसे किया। सच में प्रभु स्वर्गदूत भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई शैतान भी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सच में अद्भुत बात है परमेश्वर प्रभु, अद्भुत बात है जो आपने हमसे किया। थैंक यू लॉर्ड। Jesus Christ, crucified, bled and died to save our life, gave it all, boundless love, faithful one, to you we run. Oh, every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Son of man, great I am, healing heart is in your hand. Praise and one, it is done. Sin and death are overcome. Oh, every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every tongue will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. You're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks, you're worthy of worship, you're worthy of praise, you're worthy of honor, you're worthy of thanks. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord.
every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Let's declare it together. Every knee will bow, every tongue will shout, Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord, Jesus is the Lord. Yes, Father, we thank you. We glorify your name, Father, Lord. We give you all the glory and honor, Father. आप ही परमेश्वर है प्रभु, आप ही प्रभु है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि हर एक नींव, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान पुकारेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु। हर एक आंख देखेगी जब वो दोबारा तो आएगा प्रभु, जब यहूदा का शेर दोबारा आएगा प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रभु, हमारे लिए पिता परमेश्वर, हमको अपने पास ले जाने के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस आशा के लिए प्रभु, इस उम्मीद के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके वादों में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर, जो आपके पवित्र वचनों में लिखा हुआ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सारे गीतों से प्रभु आपकी महिमा हो, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना हम करते पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं।
लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर हम आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कुछ शाम के लिए परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। यानी हर एक जन को प्रभु आप छुइए परमेश्वर, हमारे मध्य आप आइए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। हमारे पासवान को भी आप हाथों में सौंपते हैं, जो कुछ वो बोले परमेश्वर प्रभु आपकी ओर सुनने पाए और हम सुनने पाए परमेश्वर, अपने हृदय रूपी पट्टी को उतार सके। धन्यवाद परमेश्वर। आगे भाग को भी हम तेरे हाथों में अगुवाई कीजिए, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज के वर्शिप के लिए हम लोग जोरदार ताली दे सकते हैं। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन है, जोड़ी प्रभु आशीष दे। सो मच टीम, वर्शिप टीम। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो उनका भी स्वागत है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत है। धन्यवाद प्रभु आज के इस संदेश के लिए। प्रभु एक बार फिर हम आपके चरणों के पास आते हैं कि प्रभु हर एक घटना आपके सामने टिकेंगे प्रभु, और हर एक होठ अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। और एक समय आएगा कि हर एक आंखें आपकी ओर देखेंगे, जो यीशु मसीह आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो कभी बदलता नहीं। प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं आपका अभिषेक इस जगह में हो, आपकी उपस्थिति इस जगह में हो प्रभु, आपका मिरेकल इस जगह में हो पिता। प्रभु हम चाहते हैं पूरी तरह से परमेश्वर आपका अभिषेक हम सभी को छूने पाए, आपका सामर्थ हमारे अगुवाई करने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने लोग आए हैं जो बीमार हैं, निराश हैं, उन्हें आप छू लीजिए प्रभु। अपने अभिषेक से भरिए, अपने उपस्थिति से भरिए परमेश्वर पिता। हर एक को आजादी दीजिए हर एक बंधनों से परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, ताकि हम हमारे प्रगतिशील विश्वास में बढ़ सके, हम आपको ऊंचा उठा सके, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पहला स्थान हम दे सके प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का संदेश है कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ना बदलने वाला परमेश्वर। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कभी नहीं बदलता, उसका वायदा नहीं बदलता। हमारा वायदा बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का वायदा युगानुयुग तक स्थिर है, उसका वायदा कभी टलता नहीं है। जैसे हमने आज के आराधना में सुना कि परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता।
अगर उसने वचन में लिखा है तो उसके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। ना बीमारी, ना जोखिम, ना तलवार, ना अंधकार की शक्ति, इवन ना स्वर्गदूत, कोई भी नहीं। राइट, ये उसका वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु का वचन कहता है कि धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका वायदा है कि उसका वचन कभी नहीं टलेगा, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित भी नहीं होंगे। जो उस पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का वायदा है, वो अल्फा ओमेगा का वायदा है, जो युगान युग रहता है उसका वायदा है, जो अनंत से है उसका वायदा है, जो कभी नहीं बदलता। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस वायदे पे विश्वास करें। हमारा विश्वास हमेशा कार्य करते रहे। हमारा विश्वास थके नहीं। हमारा विश्वास प्रगतिशील विश्वास हो। हमारे विश्वास कभी थके नहीं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। इसलिए हम विश्वास से बढ़ते हैं, हम उसने उसको ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए हम कलीसिया में आकर उसको आराधना करते हैं। अगर मैं यहां से आराधना कर रहा हूं और मुझे विश्वास नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं है, जो मैं प्रार्थना करता हूं, मैं घुटने में जाके प्रार्थना करता हूं और मैंने प्रार्थना को मुझे भरोसा नहीं है, जो मैं बाइबल पढ़ता हूं, उसके वचन को जो मैं पढ़ता हूं उस पर मुझे भरोसा नहीं है, या मैं आउटरीच करता हूं, सुसमाचार लोगों को सुना रहा हूं और मुझे ही भरोसा नहीं कि मैं उद्धार मुझे मिला या नहीं मिला है, मुझे ही भरोसा नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब है कि आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। आपका विश्वास में दम नहीं रह गए। यहां पे इसलिए हम आराधना करते हैं, यहां पे आप इसलिए बैठे क्योंकि आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं, आपका परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आप इसलिए इस विश्वास से आते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम हवा में तीर चलाने नहीं आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हम पूरी तरह से, कई बार आप सोचो कि हम हर एक तकलीफों से गुजरते हैं, हम सताए जाते हैं, हमारे हालातों से गुजरते हैं और हम यीशु पे विश्वास करते हैं। क्या ये सोच के विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा बदल जाएगा? अगर इस सोच के विश्वास करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा पर विश्वास करना व्यर्थ है। परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, वो कभी बदलता नहीं। यूहन्ना का 8:58 मेरे साथ पढ़ाएंगे। यूहन्ना का 8:58 आपकी बाइबल में है। यस मैं जैसे सच करता हूँ कि पहले इसके लिए किसी की अब्राहम। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। राइट। उसकी बात पता है, यहूदी लोग तुरंत छिड़ गए। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब्राहम से पहले मैं हूं। राइट। लोग अब्राहम के पीछे चलते हैं, मूसा की व्यवस्था के पीछे चलते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है? अब्राहम के बाद मूसा है कि मूसा के बाद अब्राहम? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं अब्राहम से पहले हूं। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अब्राहम से पहले हूं, मैं अनंत से हूं, मैं उत्पत्ति से पहले हूं, मैं शुरुआत से हूं, मैं आदि से हूं। यूहन्ना के 1:1 में लिखा है, मैं शुरुआत से हूं। और वो परमेश्वर जो शुरुआत से है, जो उत्पत्ति से पहले है, जो अनंत से है, जो अब्राहम से पहले है, जो मूसा से पहले है, वो परमेश्वर कहता कि मैं कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर कहता कि मैं कभी बदलता नहीं।
वो परमेश्वर कहता है मैं अनंत काल से हूं। अनंत काल से मालूम, शुरुआत से मैं अनंत काल से हूं। वो परमेश्वर कहता है मैं व्यक्तिगत रूप से हूं। वो व्यक्तिगत रूप से है। वो परमेश्वर कहता कि मैं सभी जगह उपस्थित हूं। सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर। वो कहता है मैं सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वज्ञानी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका कई सारे गुण है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सृष्टि में पहलौठा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, मैं आत्मा हूं। राइट, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं। यहोवा निशी है, यहोवा रा है, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा अडोनाय है, वो कभी बदलता नहीं। उसका कैसा है, वो बदलता नहीं। वो परमेश्वर जो कहता मैं अब्राहम से पहले हूं, मैं सृष्टि से पहले हूं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं कि हम हवा में तीर चलाते हैं। एक हम विश्वासी हवा में तीर नहीं चलाते हैं। हम विश्वासी, हमारा विश्वास खोखला विश्वास नहीं है। हमारे पास जो बाइबल है वो खोखला बाइबल नहीं है। हिस्टोरिकल ट्रूथ है ये, बुनियादी ट्रूथ है ये, भौगोलिक ट्रूथ है ये, वैज्ञानिक ट्रूथ है ये। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जो शुरुआत से, जो अनंत से है, जो ब्रह्मांड को बनाया, जो गैलेक्सी बनाया, जो स्टार, मून, लाइट, जो सब कुछ बनाया परमेश्वर, जो चांद पे लोग पहुंचते हैं, परमेश्वर ने पहले से बना रखा है वहां पे। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सृष्टि को बनाया है, सिस्टमैटिक, जो धूप और छांव हमें मिलता है। समझ रहे हैं? हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सूर्य, जो जिसके अंदर इतनी गर्मी है, जो परमेश्वर ने बनाया है। पता है उत्पत्ति के अध्याय में लिखा कि उसने दिन पे प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया और रात पे प्रभुता करने के लिए चांद को बनाया। फिर उसने कई सारे तारे बनाए जिसका कोई गिनती नहीं हो सकता। उस तारे का जो कोई भी गिनती नहीं हो सकता। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस तारे को गिनने की कोशिश किया, लेकिन वो गिन नहीं पाए। कुछ लोग बोल रहे नहीं इतने तारे हैं, कुछ लोग बोले इतने तारे हैं, गिन नहीं पाए। मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन संदेश में जा रहे हो। परमेश्वर कभी बदलता है। क्लास में आप जब जाएंगे उसमें कई सारी चीजें आपको पता चलेगा कि कौन कौन तारे गिन रहे थे। फेमस वैज्ञानिक है जिसने तारे गिना, याद है? यस, गैलीलियो। उसने खुद ना बनाया, वो क्या बनाया? टेलीस्कोप बनाया और उससे वो तारे गिनने की कोशिश किया। लेकिन कोई नहीं गिन पाया। उस परमेश्वर का जो सृष्टि है अद्भुत है। उस परमेश्वर का जो सृष्टि है अद्भुत है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ऐसा नहीं परमेश्वर है जो जिससे एक कोई क्या बोलते हैं ना, ये कोई उत्पत्ति नहीं, ऐसा नहीं हो गया। वैज्ञानिक क्या बोलते हैं टर्म्स में? एवोल्यूशन नहीं है कि जैसे कि अमीबा से मछली, मछली से मेढक, मेढक से बंदर, बंदर से इंसान। एवोल्यूशन नहीं। या करोड़ों साल पहले ना एक ब्लास्ट हो गया और सृष्टि बन गई। कुछ वैज्ञानिक ऐसे बोले कि अभी पता है एक समय आया था कि 2012 में सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के कार्य को कोई नहीं समझ पाता। वो अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
वो जिसने सारा सृष्टि को बनाया है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, पता है वो परमेश्वर फिलिपियों के 2 में शून्य बन के हमारे बीच में है, ताकि हम उसके करीब आ सके, ताकि हम उसे प्रेम कर सके। वो परमेश्वर जो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पे अपने आप को दे दिया, वो सताया गया, मारा गया और पाप पर विजय हुआ, और हम विजेता से भी बढ़ के हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता नहीं। वो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो शुरुआत है, उसका कोई अंत नहीं है, ना उसका कोई शुरुआत है। वो बदलता नहीं है, वो अनंत से है, वो परमेश्वर। सब कुछ, सारी सृष्टि उसके द्वारा हुई, यीशु मसीह के द्वारा। और वो परमेश्वर कहता है तो जहां पे जाएगा मैं वहां पे जाऊंगा। वो परमेश्वर हर जगह, वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर जो इस्राएलियों की अगुवाई करते आ रहा था, वो परमेश्वर जो मूसा से निर्गमन के 3 अध्याय में 3 के 11 से 14 में हम देखते वहां पर उस जलती हुई झाड़ी में बात कर रहा है। और पता है मूसा क्या बोलता है? प्रभु अगर मैं जाऊंगा मिस्र में तो मैं क्या बोलूंगा? पता है वहां पे क्या कहता है परमेश्वर? निर्गमन का 3:14 पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राइट, जिसका नाम मैं हूँ सो हूँ, उसने तुम्हारे पास भेजा। मूसा थोड़ा डरा हुआ है, मूसा डर गया कि नहीं मैं जाऊंगा तो पता है वहां से मैं भाग के आया तो वहां पे मालूम है मूसा ने एक व्यक्ति को मार दिया था, वहां से भाग के गया है। और मूसा डरा हुआ है कि अगर जाऊंगा तो वापस मुझे मारेंगे वो लोग, मेरा यकीन नहीं करेंगे, मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मूसा एक्सक्यूजेस दे रहा है, मेरे भाई को भेज दो, किसी और को भेज दो। कई बार हम सेवक क्या करते हैं, हमको लगता है कि मुझे करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे लोगों को बदलना है। क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? नहीं। परमेश्वर कहता मैं हूं सो हूं, मैं बात करूंगा, परमेश्वर बात करेगा। क्या हम परिस्थिति को बदल सकते हैं? मैं बदल सकता हूं? नहीं। क्या मैं चमत्कार करूंगा? मैं चमत्कार करता हूं? मैं चमत्कार करता हूं? नहीं। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर रेड सी को 2 भाग करने का सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर मुर्दों को जिलाने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर कहता कि मैं हूं सो हूं, मैं करूंगा। तुझे सिर्फ जाना है, हम सिर्फ जाते हैं और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर जाते हैं जिसमें जीवन है। उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में सच्चाई है, उसके वचन में सामर्थ्य है जो जीवन बदलता है। जब वचन से बात करते हैं तो लोग कांपते हैं और बदलते हैं। शैतान क्यों कांपता है पता है? जब उसके वचन से बात करते हैं शैतान कांपता है। उसके वचन में जीवन है, उसके शब्दों में जीवन है। उसने शुरुआत उत्पत्ति में कहा और हो गया। उसने सिर्फ बोला, अपने शब्द से बोला और हो गया। उसके शब्द में जीवन है, उसके वचन में जीवन है। इसलिए वो वचन हमारे जीवन का हिस्सा है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए वो कहता है कि धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। मेरा जो शब्द है वो कभी नहीं टलेगा। जो मैंने आपके साथ वायदा किया है वो कभी नहीं टलेगा। अगर परमेश्वर आपको भेजता है सुसमाचार सुनाने के लिए तो आपके साथ वायदा भी करता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका वचन टलता नहीं, उसका वचन टलता नहीं। वो हमारे साथ वायदा किया है, आपके साथ वायदा किया है। जैसे हमने आज सभी गीत में सुना कि उसके प्रेम से आपको कोई अलग नहीं करेगा क्योंकि उसने आपके साथ वायदा किया। वो कहता है कि जन्म देने वाली मां छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा।
परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने यीशु को पाया है, जिन्होंने उस वचन को पाया है, उसने ज्योति पाई है, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। जो उस पर भरोसा करते हो कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आपके पास यीशु है, आपके पास जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपके पास यीशु है, आपके पास शांति है। आपके पास यीशु है, आपके पास नया जीवन है। आपके पास यीशु है, आपके पास वो परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा है। आपके पास यीशु है, वो परमेश्वर है जो मैं हूं सो हूं, जो कहता है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो आपकी अगुवाई करता है। वो परमेश्वर जो बादलों में और आग के खंभे में इस्राएलियों की अगुवाई करता है, वो आपके पास वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो यहोशू को जीतने के लिए, पता है क्या हो गया? सूर्य रुक गया, राइट? अभी पहला इतिहास में इस तरह से घटना घट रही है इस दुनिया में। वो परमेश्वर है जो कुछ भी कर सकता है। बाइबल कहती कि वो आकाश को वो एक ना अपने हाथों में मरोड़ेगा, वो कागज के समान। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप समझ रहे हैं? उस परमेश्वर को आप समझ रहे हैं? हम उस परमेश्वर के सामने, पता है, जो सृष्टि को बनाया है, उस परमेश्वर के सामने हम छोटे से हैं, कुछ भी नहीं है। हम घास के समान भी नहीं है। इसलिए दाऊद कहता कि परमेश्वर कौन हूं मैं तो एक घास के समान हूं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। रोमियो का 11:29, रोमियो का 11:29, रोमियो का 11:29। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। अटल है। मेरे भाई और बहन और जवानों, ध्यान से सुनिए। हम सबके लिए जिसने परमेश्वर ने बुलाया है, उसकी बुलाहट अटल है। जो वरदान, जो आशीष हमें मिली है, वो अटल है। जो उद्धार हमें मिला है, वो अनुग्रह से मिला। उस उद्धार को हम खो नहीं सकते, वो अटल है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ध्यान से सुनिए। जो बुलाहट आपको मिली है वो अटल। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी जाएंगे, वो परमेश्वर जो जंप किया उस आग में अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो उस पर भरोसा करते हैं ना, परमेश्वर वहां पे जंप करता है बचाने के लिए। अगर मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, अगर मैं यीशु पे भरोसा करता हूं, तो परमेश्वर उस परिस्थिति में भी जंप करता है मैं बचाने के लिए। उस आग में जंप किया उस सदरक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए। परमेश्वर अटल है, उसका वायदा अटल है, उसका बुलाहट अटल है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम क्यों उदास हैं? हम क्यों रोते हैं? हम क्यों थके हुए विश्वास को लेकर चलते हैं? मैं विश्वासी हूं। हाँ, हमारा थका हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरे भाई और बहन, हमारा थका हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा थका हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। हम यीशु मसीह में विश्राम पाते हैं, हम उसके वायदे में विश्राम पाते हैं। जो वायदा उसने हमारे साथ किया है, पता है, हम उसके वायदे में विश्राम पाते हैं। जो वायदा उसने किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके वायदे में विश्राम पाते हैं। उसके वायदे, उसको मूसा को परमेश्वर का वायदा पता था, लेकिन इस्राएल लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं। उसे वायदा पता था कि वो परमेश्वर जो चट्टान से पानी पिला सकता है, वो परमेश्वर इस लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। हर एक परिस्थिति को परमेश्वर आपके जीवन में दो भाग कर सकता है। हर एक हालातों को परमेश्वर आपके जिंदगी में दो भाग कर सकता है, अगर हम उस पर विश्वास करते, उसके वायदे में विश्वास करते हैं। हालेलुया, उसके वायदे में विश्वास करते हैं, वो दो भाग कर सकता है। उसका वायदा अटल है, वो कभी बदलता नहीं। वाह, वो कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का वचन अटल है, कभी नहीं बदलता है।
मेरे साथ निकालेंगे मलाकी का 3:6, मलाकी का 3:6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं होगे। राइट, कहता मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं होगे। यानी परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा। डरो मत हे छोटे झुंड, डरो मत, चिंता मत करो तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता को। डरो मत हालातों से, डरो मत महामारी से, डरो मत सुसमाचार सुनाने से, क्योंकि जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो वो कहता है जो मैं हूं सो हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी बदलता नहीं, मैं कभी बदलता नहीं। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा फिरौन आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा गोलियत आ जाए, कितना भी बड़ा लाल समुद्र आ जाए, परमेश्वर उसको भी दूर करेगा। वो बदलता नहीं है। हालेलुया, वो बदलता नहीं है। दाऊद किस नाम से जाता है? सेनाओं का यहोवा। तुमने सेनाओं की यहोवा की ओर ललकारा है। दाऊद कहता है मुझे मालूम है मैं बड़ा छोटा हूं, मैं पूरा पोशाक नहीं पहन सकता, लेकिन तुम सेनाओं की यहोवा को ललकारे हो। मुझे नहीं, दाऊद बड़ा ध्यान से देखिए, उसका विश्वास देखिए, वो यीशु की ओर इशारा कर रहा है, उस अल्फा ओमेगा की ओर इशारा कर रहा है। तुमने इसको ललकारा है और यीशु उसी के नाम से मैं तुम्हारे पास आता हूं। हम जब जाते हैं आउटरीच पे, हम अल्फा ओमेगा के नाम से जाते हैं, यहोवा निस्सी के नाम से जाते हैं, यहोवा राहत के नाम से जाते हैं, यहोवा ईरे के नाम से जाते हैं। पता जिसके नाम से गदी भी बोलने लगती है। हालेलुया, गदी भी बोलने लगी। अरे तुम मुझे क्यों मार रहे भाई? वो पीट रहा है, बालाम पीट रहा है, उसको पीट रहा है, चल आगे बढ़ आगे बढ़। अरे तुझे उसको बोलो तू अंधा दिख नहीं रहे, सामने सेनाओं का यहोवा खड़ा है, तलवार लिए खड़ा है। हालेलुया, उसके नाम से गदी भी बोलने लगती है, उसके नाम से दुष्ट आत्मा कांपते हैं। मालूम है मैं यीशु को जानता हूं, मैं पौलुस को जानता हूं, तू कौन है? याद है कुछ लोग आके बिना मतलब कल्चरल फेथ लेके आते हैं, कुछ लोग कल्चरल फेथ, इमोशनल फेथ, राइट, भावनात्मक फेथ लेके आते हैं और वो चमत्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं पौलुस को जानता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, तू कौन है? हम लोग अगर कल्चरल फेथ लेके आते हैं मेरे भाइयों बहनों, इमोशनल फेथ लेके आते हैं, बोरो फेथ लेके आते हैं, मास फेथ लेके आते हैं, संसारिक फेथ लेके आते हैं, तो हम उस परमेश्वर की महानता को नहीं समझ पाएंगे। उस परमेश्वर की महानता को कभी नहीं समझ पाएंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य 11 का 8 और 17 हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 11 का 8 और 17। यस, पढ़िए भैया। उनके सब उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और प्रकाशित वाक्य 1 का 8 और 17। 1 का 8 और 17। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर जो है, जो आने वाला है, जो था, जो वर्तमान में, जो भूत में, जो भविष्य में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो आने वाला, जो है, जो था, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और यीशु वही आने वाला है जो हर एक आंखें यीशु की ओर देखेंगे और हर एक घुटना टिकेंगे और हर एक होठ अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। हमने गीत गाया था इंग्लिश में, हर एक आंखें, एवरी आंखें, एवरी आंखें, हालेलुया, एवरी आंखें, एवरी आंखें, प्रत्येक आंखें, एवरी आईज, हर एक घुटना
आने वाले राजा हर एक हैं? हर एक जुबान हालेलुया कि यीशु ही प्रभु है। कब तक इनकार करोगे? जब वो आएगा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक नीज उसके सामने टिकेगा, हर एक टंग्स अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। वाह हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास मरा हुआ विश्वास लेके मत चलिए, आपका विश्वास थका हुआ विश्वास लेके मत चलिए, आपका विश्वास कमजोर विश्वास होके लेके मत चलिए, क्योंकि आप वो परमेश्वर आपके साथ जो वायदा किया है वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी टलेगा नहीं, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। प्रकाशित वाक्य 1:17 जब मैंने उसे देखा यस तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। राइट, कौन? वही यीशु जो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे गया, वो यीशु जो है उस जो है यूहन्ना से बोल रहा स्वर्ग में कि देख मत डर, मैं अब जो क्रूस पे गया था अब जी उठा हूँ, मैं प्रथम हूँ और अंतिम और जीविता हूँ और वापस आने वाला हूँ, वापस आने वाला हूँ और हर एक का काम का न्याय किया जाएगा उस बीमा सीट के सामने। और जो उसे इनकार करेगा श्वेत सिंहासन के सामने उसका न्याय होगा। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना के 3:16 में लिखा कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन 17 में क्या लिखा है? हाँ, जो उस पर विश्वास नहीं करेगा दंड की आज्ञा उस पर हो चुकी है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मार्ग सत्य जीवन, मैं अल्फा और ओमेगा। बाइबल जो 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा कि पूरी तरह से पवित्र आत्मा से प्रेरित है, जिस बाइबल में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में लिखा, 40 के लगभग लोगों ने लिखा, वो बाइबल कभी बदलता नहीं। जो हिस्टोरिकल है, जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कभी बदलता नहीं। आखिरी वचन हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों का 13:7 और 8। इब्रानियों का 13:7 पढ़ेंगे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। 8 यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। राइट, जो वचन तुमने सुना है, जो वचन तुम सुनते हो, चाहे पुलपिट से, कलीसिया, बाइबल कॉलेज के दौरान, चाहे कहीं भी सुसमाचार के दौरान, पर्चे पे, जो आप सुनते हो, कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है यीशु का वचन सुनने के लिए, कहीं भी आपको संगति करने का मौका मिलता है, कहीं भी आपको बाइबल को जानने का मौका मिलता है, कहीं भी आपको अगर चांस मिलता है यीशु पे विश्वास करने का, तो आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी बदलता नहीं है। जो आप उस पर विश्वास करता है, हालेलुया, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में जब आप जाते हो तो विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हो, विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर जा रहा है, आपके साथ वो यीशु मसीह है जो कभी बदलता नहीं, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। जब आप कलीसिया में जाते हो, विश्वास के साथ जाइए, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। जब आप मिशन में जाते हो, विश्वास से जाइए, क्योंकि आपके साथ यीशु है जो कभी बदलता नहीं है। जब आप हालातों में होते हो, विश्वास करिए, प्रार्थना में जाइए और विश्वास करिए कि वो परमेश्वर आपके साथ है जो कभी बदलता नहीं है। वो परमेश्वर उस हालातों को भी दो भाग कर सकता है। तो परमेश्वर आपके साथ वायदा करता है, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं कभी बदलता नहीं, मैं जीवता हूं,
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।